कहा है कि पीएम मोदी जो है झूठ है, पीएम मोदी। I think it's absolutely disgusting. This is no way. I mean, these are young people. They have a genuine problem. We all know what that problem is. We all know that every time they spend money, that their parents take loans for them. They struggle. They have to go to coaching centers. All sorts of things. They face immense struggles, basically because they want a bright future for themselves, and they see that there's a possibility for a future, and you're just destroying that future. So this is a very deep problem. This problem has been there for many years, and we have been talking about it for many years. I remember when I was in UP, I was taking this problem up because every young person I met, you will not believe, I met a person he was 28 years old, and he was crying because he said that every time he has given the exam, and he has given the exam so many times, it's the paper leaks, something goes wrong, and he's at the same time he feels that now I've invested so much in this. If I leave it now and try to start looking for a job now or try to do something, I will have no future. So he gets stuck in that cycle of going on and on, giving more and more exams and tests and preparing, and the boy is 28 years old. And it's not one person, there are thousands and thousands of children like this. Every parent who is a parent of a child who is studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely simply asking that they should be heard. Now the Prime Minister, he is the leader of the country. This is the youth of the nation. This country belongs to them. This parliament belongs to them. We are all here because of them. So the least he can do is hear them out, listen to them, call them, understand what the issue is. They are asking rightly for the resignation of the minister. So he is the person who is responsible. नहीं, देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफ़ी समय से. ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है. किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है. हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है. आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्ज़ाम होता है कितना टेंशन होता है. एज इट इज़ इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं इतने समय से, तो बच्चा अपने फ्यूचर को देख रहा है, कह रहा है कि मतलब मेरे फ्यूचर में फिर है क्या, मैं स्ट्रगल ही करते रहूं. मैं कह रही थी इंग्लिश में, मैं कह रही थी कि मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिली थी जब मैं यूपी में काम कर रही थी जो 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के बच्चे कह रहे हैं हमारी तो शादी भी नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति की लिस्ट आएगी, पेपर लीक हो जाता है, हम एग्ज़ाम देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद फिर हम दोबारा देते हैं. तो मतलब ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता. ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है. आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली. ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है. और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं. आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं. ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं.
ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है, उन्होंने ये रखा है, तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है, देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिज़ाइन करवाइए। देखिए एक ज़माना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे, मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे। तो इस्तीफ़ा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे ज़रूरी तो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। हाँ अच्छा, क्या हो रहे भाई, विश्वगुरु के बारे में बोलना है। Sir, Rahul Gandhi said that PM Modi is most anti-youth prime minister of India. This is clearly visible now with the yesterday's incident in New Delhi, when the agitation in a democratic process and the students want to give the representation. The way they have handled the issue itself clearly shows how Narendra Modi wants to run this country. And in a democratic country, he has to listen to the opposition, he has to listen to the student issues, he has to listen to the unemployed issues, he has to listen to everybody. But when we see inside the house or outside the house in the country, the BJP is not interested in listening to anybody, especially the youth, the future of this country. If they have to say something, it is mandatory that the Prime Minister or the ministers have to understand, and their demand is to, in regard to the NEET leaks. So, in order to, their demand is to remove the Education Minister for very long now. And he is not even responding on that. Even after so much of hesitation also, what is that Prime Minister is elected by the people, or he himself is thinking is a Vishwaguru, is nominated by the God. So this is his attitude, and he has to change his attitude. CJP is protesting today. They will continue the protest until their demand is fulfilled. The demand is simple. Why they are not removing the Education Minister, I don't understand. When such a huge thing happened in the paper leak issue, where 11 of them have died, there is nothing the Prime Minister is worried about the people of this country. राम मंदिर के चंदे में घपले के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। अब क्या इसी मांग को लेकर आज की शुरुआत होगी? बिल्कुल, सरकार अपने जिद्दी रवैये पे अड़ी हुई है, जिसकी वजह से सदन का टाइम ख़राब हो रहा है और सरकार मान नहीं रही है, अपने जिद के ऊपर अड़ी हुई है। जो छात्रों की मांग है, जो जायज़ मांग है, और उसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए। और जो चंदा के घोटाला हुआ राम मंदिर के अंदर, करोड़ों देशवासियों की आस्था के ऊपर चोट हुई है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जायज़ मांग है, लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया है वो ठीक नहीं है। कल जिस तरह से छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, 70 जो प्रोटेस्टर हैं उनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज भी जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि आज भी संसद का घेराव या प्रोटेस्ट करेंगे। ये छात्रों के साथ में बिल्कुल गलत हुआ है। छात्रों की यही मांग थी कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। अगर सरकार के प्रतिनिधि वहाँ समय रहते, जाके बात करते, तो ऐसी नौबत नहीं आती। और वैसे नन्हे बच्चे थे जो 18-19 साल के, 17-18 साल के बच्चे और बच्चियों के ऊपर जो क्रूरता का व्यवहार हुआ है वो ठीक नहीं है। पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। सीजेपी के जो मुख्य एक तरह से जो लीड कर रहे हैं दीपक से, वो पहले राहुल गांधी का क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन आजकल नहीं कर रहे हैं। क्या उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिला? ये सीजेपी का मामला नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का मामला है और बच्चों की जायज़ मांग है। और उसकी अपनी जायज़ मांग को लेकर प्रदर्शन कोई भी कर सकता है। हो सकता है वो भी आंदोलन में शामिल है और भी कई लोग आंदोलन के अंदर शामिल है। तो ये बच्चों का मामला है, तो इसमें सरकार को इस तरीके का क्रूरतम व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अमेरिकी डील को लेकर किसान भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
दिल्ली मार्च, उनका जो दिल्ली मार्च का प्रोग्राम है, इस पर क्या कहेंगे? किसान कह रहे हैं कि अगर ये डील हो जाती है तो उनका जो है उनकी आमदनी कम हो जाएगी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। बिल्कुल, ये किसानों के हितों के साथ में कुठाराघात है। एक तरफ तो सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे नियम कानून लाकर किसानों की जो आय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये किसानों की मांग जायज़ है, जैसे जो इम्पोर्ट ड्यूटी जिस प्रकार लगाई गई है और इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी है, और जिससे कि कपास वगैरह का इंपोर्ट इंडिया के अंदर हो सकता है, जिससे किसानों को कपास की दालों की सही उचित मूल्य नहीं मिलेगा। और किसान देश के जो मेहनत करते हैं और अपना खून पसीना बहाकर जो अन्नदाता के रूप में देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, तो उनकी बात सबसे पहले सुननी चाहिए। और ये सरकार का जो अड़ियल रवैया है वो ठीक नहीं है। The demand for reply by the Prime Minister or Home Minister or Parliamentary Affairs Minister must come regarding paper leakage as well as looting of Rama gifts. These two demands are not only from Congress party but all opposition MPs are demanding. Not only that, the people of India, particularly youth, are hesitating about the accountability of the government of India. This is not a party issue, this is a government issue. We are demanding the Prime Minister as Prime Minister of India. He may be coming from BJP, that is different. Or we are demanding the Home Minister as a Home Minister of India. Like that we are demanding all others to come. And yesterday, you know, there was lathi charge, tear gas, and the youth could not be controlled because they are not satisfied with the way in which the government is functioning. That is why subject is same. We will demand the government to reply, at least to reply. Let them do it. Do you think that government will No, it is not a expectation. We wish that they will do it. If they don't do it, they are not accountable to the people. They are not working as per the constitution or democracy. Rahul Gandhi said that PM Modi is anti-youth. It is not only anti-youth, Modi is anti-constitutional also. Rahul ji always tells that this BJP government is anti-constitutional also.